हम पढ़ेंगे ड्यूटनॉमी व्यवस्था विवरण ड्यूटनॉमी 22 चैप्टर 23 चैप्टर 24 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में बीएसआई बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारी सहायता की है और झूठ का पर्दाफाश करके हमें सच्चाई के सामने लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि हम आपके वचन को पिता परमेश्वर सच्चाई और उजियाला लेकर पिता अंधकार से अलग हो जाए, अज्ञानता से अलग हो जाए और परमेश्वर आपकी सेवा में बढ़ते जाए, आपके भय में बढ़ते जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, हमारी सहायता कर इस बाइबल रीडिंग में। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे ड्यूटनॉमी 22 किंग्स जेम्स वर्शन में से। Thou shalt not see thy brother's ox or his sheep go astray, and hide thyself from them. Thou shalt in any case bring them again unto thy brother, and if thy brother be not nigh unto thee, or if thou know him not, then thou shalt bring it unto thine own house, and it shall be with thee until thy brother seek after it, and thou shalt restore it to him again. In like manner shalt thou do with his ass, and so shalt thou do with his raiment, and with all his lost thing of thy brother's, which he hath lost, and thou hast found, shalt thou do likewise. Thou mayest not hide thyself. Thou shalt not see thy brother's ass or his ox fall down by the way, and hide thyself from them. Thou shalt surely help him to lift them up again. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. If a bird's nest chance to be before thee in the way, in any tree or on the ground, whether they be young ones or eggs, and the dam sitting upon the young or upon the eggs, thou shalt not take the dam with the young, but thou shalt in any wise let the dam go and take the young to thee, that if it may be well with thee, and that thou mayest prolong thy days. When thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy roof, that thou bring not blood upon thine house. If any man fall from thence, thou shalt not sow thy vineyard with divers seeds, lest the fruit of thy seed which thou hast sown and the fruit of thy vineyard be defiled. Thou shalt not plough with an ox and with an ass together. Thou shalt not wear a garment of divers sorts as of woolen and linen together. Thou shalt make thee fringes upon the four quarters of thy vesture, wherewith thou coverest thyself. If any man take a wife and go in unto her and hate her, and give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid, then shall the father of the damsel and her mother take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate, and the damsel's father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her, and lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid, and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city, and the elders of that city shall take that man and chastise him, and they shall amerce him in 100 shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel, and she shall be his wife. He may not put her away all his days. But if his thing be true, and the tokens of virginity be found for the damsel, then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones, that she die, because she hath wrought folly in Israel, to play the war in her father's house. So shalt thou put evil away from among you.
if a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman and the woman. So shalt thou put away evil from Israel. If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband, and a man find her in the city and lie with her, then ye shall bring them both out unto the gate of her of that city, and ye shall stone them with stones that they die. The damsel because she cried not, being in the city, and the man because he hath humbled his neighbor's wife. So thou shalt put away evil from among you. But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her and lie with her, then the man only that lay with her shall die. But unto the damsel thou shalt do nothing. There is in the damsel no sin worthy of death. For as when a man riseth against his neighbor and slayeth him, even so is this matter. For he found her in the field, and he betrothed damsel cried, and there was none to save her. If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her and lie with her, and they be found, then the man that lay with her shall give unto the damsel's father 50 shekels of silver, and she shall be his wife, because he hath humbled her. He may not put her away all his days. A man shall not take his father's wife, nor discover his father's skirt. हम पढ़ेंगे 23 चैप्टर. First verse, he that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the congregation of the Lord. A bastard shall not enter into the congregation of the Lord. Even to his 10th generation shall he not enter into the congregation of the Lord. And Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the Lord. Even to their 10th generation shall they not enter into the congregation of the Lord forever, because they met you not with bread and with water in the way when ye came forth out of Egypt, and because they hired against thee Balaam the son of Beor of Pithor of Mesopotamia to curse thee. Nevertheless, the Lord thy God would not hearken unto Balaam, but the Lord thy God turned the curse into a blessing unto thee, because the Lord thy God loved thee. Thou shalt not seek their peace nor their prosperity all thy days forever. Thou shalt not abhor an Edomite, for he is thy brother. Thou shalt not abhor an Egyptian, because thou wast a stranger in his land. The children that are begotten of them shall enter into the congregation of the Lord in their 3rd generation. When the host goeth forth against thine enemies, then keep thee from every wicked thing. If there be among you any man that is not clean by reason of uncleanness, that chanceth him by night, then shall he go abroad out of the camp, he shall not come within the camp. But it shall be when evening cometh on, he shall wash himself with water, and when the sun is down, he shall come into the camp again. Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad, and thou shalt have a paddle upon thy weapon, and it shall be when thou wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee. For the Lord thy God walketh in the midst of thy camp. Thou shalt not deliver unto his master the servant which is escaped from his master unto thee. He shall dwell with thee even among you in that place which he shall choose in one of thy gates, where it liketh him best. Thou shalt not upraise him.
There shall be no war of the daughters of Israel, not a sodomite of the sons of Israel. Thou shalt not bring the hire of a war on the price of a dog into the house of the Lord thy God for any vow, for even both. These are abomination unto the Lord thy God. Thou shalt not lend upon usury to thy brother, usury of money, usury of victuals, usury of anything that is lent upon usury. Unto a stranger thou mayest lend upon usury, but unto thy brother thou shalt not lend upon usury, then that the Lord thy God may bless thee in all that thou settest thine hand to in the land whither thou goest to possess it. When thou shalt vow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it, for the Lord thy God will surely require it of thee, and it would be sin in thee. But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin in thee. That which is gone out of thy lips thou shalt keep and perform, even a freewill offering, according as thou hast vowed unto the Lord thy God, which thou hast promised with thy mouth. When thou comest into thy neighbour's vineyard, then thou mayest eat grapes thy field at thine own pleasure, but thou shalt not put any in thy vessel. When thou comest into the standing corn of thy neighbour, then thou mayest pluck the ears with thine hand, but thou shalt not move a sickle unto the neighbour's standing corn. हम पढ़ेंगे 24 ड्यूटोनॉमी 24 चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट वर्स से. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे 24 चैप्टर. When a man hath taken a wife and married her, and it came to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of the house, she may go and be another man's wife. And if the later husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house, or if the latter husband die, which took her to be his wife, her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife after that she is defiled. For that is abomination before the Lord, and thou shalt not cause this land to sin, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. When a man hath taken a new wife, he shall not go out to war, neither shall he be charged with any business, but he shall be free at home 1 year, and shall cheer up his wife which he hath taken. No man shall take the nether or the upper millstone to pledge, for he taketh a man's life to pledge.
If a man be found stealing any of his brethren or the brethren of the children of Israel, and maketh merchandise of him, or selleth him, then that a thief shall die, and thou shalt put evil away from among you. Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently, and do according to all that the priests the Levites shall teach you, as I commanded them, so ye shall observe to do. Remember what the Lord thy God did unto Miriam by the way, after that ye were come forth out of Egypt. When thou doest lend thy brother anything, thou shalt not go into his house to fetch his pledge. Thou shalt stand abroad, and the man to whom thou doest lend shall bring out the pledge abroad unto thee. And if the man be poor, thou shalt not sleep with his pledge. In any case, thou shalt deliver him the pledge again when the sun goeth down, that he may sleep in his own raiment, and bless thee, and it shall be righteousness unto thee before the Lord thy God. Thou shalt not oppress as hired servant that is poor and needy, whether he be of thy brethren or of thy strangers that are in thy land within thy gates. At this day thou shalt give him his hire, neither shall the sun go down upon it, for he is poor, and setteth his heart upon it, lest he cry against thee unto the Lord, and it be sin unto thee. The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Thou shalt not pervert the judgment of the stranger, nor of the fatherless, nor take a widow's raiment to pledge. But thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and the Lord thy God redeemed thee thence. Therefore I command thee to do this thing. When thou cuttest down thine harvest in thy field, and hast forgot a sheaf in the field, thou shalt not go again to fetch it. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hands. When thou beatest thine olive tree, thou shalt not go over the boughs again. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow. When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it afterward. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow. And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt. Therefore I command thee to do this thing. हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 22 अध्याय पहले वचन से। तो अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसका अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो, या तो उसे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गदहे या वस्त्र के विषय वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तो देखे अनदेखे न करना। तो अपने भाई के गदहे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखा न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और उन बच्चों या अंडों पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को न लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को
अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गदहा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर के कोर पर झालर लगाया करना। नैतिकता के नियम 13 वचन से आगे। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको प्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये है। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाए। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। यों तो अपने मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। इस प्रकार तो ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपनी पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुछ न करना। उस कन्या का पाप प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसे ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसका कोई बचाने वाला न मिला। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके विवाह की बात न लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाए, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रुपया दे, और वह उसी की पत्नी हो। उसने उसका शील भंग किया, इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना न उघाड़े। 23 अध्याय पहले वचन से। यहोवा की सभा में प्रवेश निषेध। जिसके अंडे कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा के सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए,
उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम नहरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तो जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए। छावनी को शुद्ध रखना। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वही दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों के एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अन्य नियम 15 वचन से आगे। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण तो ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर न करना। इस्राएली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो, और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तो वेश्यागमन या की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर न देना। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे के दाख के बारी में जाए तब पेट भर मन माने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। तलाक और पुनर्विवाह 24 अध्याय पहले वचन से। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे
पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरे पुरुष जिसने उसको अपने स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तो उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। अन्य नियम 5 वचन से आगे, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट और को बंधक न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखता है। यदि कोई अपनी किसी इस्राएली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हें सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसे ही करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना, तो बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना, सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ ना ओढ़ कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में 20 दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वो परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरा सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें परमेश्वर जो वचन के अधीन लाया है, हमें फिट एंड फिक्स कर रहे हो, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में ला रहे हो, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर गॉड, यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमन्स 2 chapter 1 verse से 11 verse, Psalms 90 chapter,
रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 11 वचन, भजन संहिता 90 अध्याय, 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हमारे पर्सनल व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। इससे परमेश्वर जो हमको बदलाव लाना चाहता है, सुधार लाना चाहता है, हम उसको स्वीकार सकेंगे। ज़रूरी नहीं सभी ने अकेले में पर्सनल व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। हम अपने तरीके से, परमेश्वर का आत्मा हमको जैसे अगुवाई करता है वैसे हम पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है कि हमने परमेश्वर के आत्मा से सीखना है। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।